Hello students, welcome to our YouTube channel Shetty's Technical Academy for diploma and degree classes. Good morning student, my name is Sagar Kundlik Made. Today we are going to discuss on the subject of strength of material. Its short form is SOM. Now in this subject we are learning first chapter that is simple stress and strain. Now in this subject, in this lesson, the basic term we are going to discuss. In that first basic term is elasticity. Now what is mean by elasticity? अगर आपने यहाँ पे इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा रहेगा थोड़ा तो आपको नाम से ही आपको समझ में आएगा व्हाट इज मीन बाय इलास्टिसिटी. लेट अस कंसीडर एनी एग्जांपल दैट इज रबर. नाउ दिस रबर वी आर स्ट्रेच्ड. अगर हमने एक रबर लिया, रबर टाइप का मटेरियल लिया, अगर उसको मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया. फोर्स मतलब मैंने पुल किया, पुश किया, तो क्या हो सकता है उसमें. नाउ इन दैट पोर्शन ऑफ द पार्ट दैट रबर विल बी गेट एक्सटेंडेड और गेट कॉम्प्रेस. After removal of that force, the body regains its original shape and size. Okay? This term is called as elasticity. What is the definition of elasticity is that whenever we are applying any force on that body, the body goes in the deformation state. Once we remove that actional force, the body regains its original shape and size. That is called as a elasticity. Now, second term is plasticity. First of all, before going to plasticity, we have to go examples of elasticity. Rubber, next sponge, any related material that goes in the deformation state. Now, second term is plasticity. Now, plasticity definition is according to the definition of elasticity, it is goes in the deformation state. Now, plasticity. Directly in plasticity में directly name से indicate होने वाला है. Plasticity क्या है? Plasticity में क्या बोल रहे हैं वहां पे? Now, प्लास्टिक मटेरियल नहीं है यहाँ पे. प्लास्टिसिटी में हमने क्या किया, इलास्टिसिटी में क्या किया था, बॉडी को एक फोर्स अप्लाई किया था. आफ्टर दैट बॉडी विल गोज इन द डिफॉर्मेशन स्टेट. द टर्म डिफॉर्मेशन इट मींस बॉडी चेंजेस शेप एंड साइज इररेस्पेक्टिव डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. मतलब अगर हमने कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया रहेगा तो बॉडी जिस साइड से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस साइड से एक्सपेंशन होगी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. नाउ प्लास्टिक इलास्टिसिटी हमने क्या किया था, हमने फोर्स अप्लाई किया था तो बॉडी क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हो गई. आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स बॉडी अगेन कम्स विद ओरिजिनल शेप एंड साइज. दैट टर्म इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी थोड़ा सा ऑपोजिट है. हमने प्लास्टिसिटी में सेम कॉन्सेप्ट किया, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट बॉडी. नाउ दैट बॉडी गोज इन द डिफॉर्मेशन स्टेट. After removal of external force, body doesn't come its original shape and size. Now, this term is called as a plasticity. Plasticity, अगर हमने कोई भी टर्म बॉडी के ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया रहेगा तो बॉडी क्या होगी, एक्सटेंड होने ही वाली है और आइदर इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट. बट जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं, बॉडी डजंट कम इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिसिटी. ओके. Now examples. Any materials you can conclude. Now plastic materials you can examples. Now plywood, etc. There are the examples. Now third term is ductility. That ductility which already you have learned in the 10th subject. Third term is ductility. A material which goes under the deformation and the formation of wire. That is called as a ductility. Example, gold, silver, copper. That is the example of ductility. Next is malleability. The malleability which is the material which goes in the thin formation of sheet. Means formation of sheet that is comes in the malleability. There are some different depending on the thickness of the sheet. There are some different types, but there we have to not discuss on that topic. The malleability, exact meaning of malleability, there is the formation of thin sheet. Now fatigue, the very most important concept that is called as fatigue. This is the basic of the prior regularity that we already know. Now after this fatigue, creep and up to the brittleness, these are the most common important factors in a strength of material subject. Now fatigue, as you know, fatigue meaning this is the first related introduction to the fatigue. Now अगर आपने ट्रेन में अगर कहीं सफर किया रहेगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा
ट्रेन का फर्स्ट डब्बा रहेगा ना, वहां पे कंसिडर करो 100 आदमी वहां पे ट्रेन में है, फर्स्ट डब्बे में, फर्स्ट वैगन में। एंड सेकंड वैगन देयर आर, लेट अस कंसीडर देयर आर 50 पीपल्स, इन थर्ड वैगन देयर आर 20 पीपल्स। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, वैगन टू वैगन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज होती जा रही है। फटीग मींस देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ लोड, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, मींस दैट लोड इज कांट बी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ फटीग। मींस मटेरियल एक है, लेकिन एक मटेरियल के ऊपर हर टाइम अलग अलग टाइप का लोड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फटीग। द मटेरियल which can take fluctuation of load or repeated load, the term is called as a fatigue. Okay, example, second example of fatigue. अगर आपने नेल आपके वॉल में अगर आपने इंसर्ट किया है, मतलब आपका खिल्ला आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या इंसर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ तो आगे क्या हो सकता है, हम उस नेल के ऊपर कभी कभी हमारा हैंग क्या करते हैं, टी शर्ट हैंग करते हैं, कुछ भी हैंग करते हैं, कभी कभी हर टाइम अलग अलग क्या रहता है, हमारे अलग अलग क्या पार्ट रहते हैं वहां पे हैंग करते हैं। नाउ अभी क्या होता है वहां पे, देखो जैसे हम हैंग करते हैं ना, आफ्टर 2-3-4 इयर्स बैक जो वो नेल ऐसा स्ट्रेट रहता है ना, थोड़ा सा बेंड होता है, ठीक है। क्यों बेंड होता है, बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ लोड, वहां पे क्या हो रहा है, स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहा है इंटरनली, दैट्स व्हाई दैट इज कम्स इन द डिफॉर्मेशन स्टेट एंड इट इज बिकम्स नेक फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फटीग। नाउ थर्ड 6 इज क्रीप। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हर टाइम इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन क्रीप, व्हाट इज मीन बाय क्रीप, ये तो आना ही चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं ना, नेचुरल अलग एक थिंकिंग रहती है। मतलब ये देखो, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, दैट आर नेचुरली, मतलब नेचुरल, हाँ इधर बॉडी है, इलास्टिक है, ये प्लास्टिक है, हम डायरेक्ट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन क्रीप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्रीप ये नेचुरल से ही एक बना हुआ एक डेफिनेशन है, उसका डेफिनेशन क्या है मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले एग्जांपल देखो, उसके बाद डेफिनेशन। नाउ एज वी गो फॉर क्रीप, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइंस देखा रहेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस में क्या होता है मालूम है, वहां पे डायरेक्ट ऐसा ब्रिज रहते इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस के डायरेक्ट, और वहां पे हैंग किया रहता है। तो आप जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लाइंस का, तभी ये ब्रिज का जो वायर रहता है ना, वो क्या होता है, वायर फर्स्ट टाइम ना ये स्ट्रेट रहता है। नाउ स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, एक दो स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप रहता है, वहां पे जो ये वायर है ना, ये वायर, दिस इज कॉल्ड एज योर वायर, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। वो फर्स्ट टाइम क्या रहता है, ऐसा स्ट्रेट रहता है। आफ्टर 2-3 ईयर, आफ्टर सम टाइम, मतलब आफ्टर 2-3 ईयर बैक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वायर है ना, थोड़ा स्ट्रेट है ना, थोड़ा सा क्या होता है, कर्वेचर शेप में जाता है, मतलब ऐसे शेप में जाता है। ऐसे क्यों जाता है, उसके अलग अलग रीजन है। सबसे पहला रीजन सेल्फ लोड, सेकंड रीजन इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, दैट इज नेचुरली। थर्ड रीजन इज, नाउ आपने यहाँ पे देखा रहेगा, ये वायर यहाँ पे हैंग, यहाँ पे क्या रहता है, अटैच रहता है, यहाँ पे अटैच फिक्स है दोनों साइड में, तो दोनों साइड फिक्स है, तो वायर का टोटल लोड कहाँ पे आने वाला है, सेंटर के ऊपर। तो इसलिए वायर का जो सेंटर का पोर्शन रहता है ना, वो सबसे ज्यादा नीचे रहता है, और वायर जैसे हम सेंटर से अवे जाते हैं ना, उसका जो कर्व वाला पोर्शन है थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो नेचुरली एक ऐसा कर्वेचर क्रिएट होता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रीप। तो क्रीप क्या बोलता है, continuous deformation of material with respect to time, a continuous deformation of material with respect to time under constant load, that is called as a creep. Continuous deformation मतलब कि इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट टाइम जैसे हमने वायर इंस्टॉल किया तो डायरेक्टली ऐसा स्ट्रेट नहीं रहता, पहले स्ट्रेट रहता है, आफ्टर मतलब आफ्टर 2-3 डेज बैक डायरेक्टली कर्व नहीं होता है, 2-3 ईयर के बाद वो कर्व में जाना स्टार्ट होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहला ऐसा था, थोड़े दिन बाद ऐसा, थोड़ा ऐसा, ऐसा होने के बाद वो इट कम्स इन द कर्वेचर शेप। तो ये होगा कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हो गया। डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
मतलब टाइम के रिलेटेड वो कर्व में शेप हो रहा है अंडर कांस्टेंट लोड। अब यहाँ पे लोड कांस्टेंट कौन सा है, वायर का जो सेल्फ लोड है दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट लोड। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ क्रीप। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ क्रीप विल बी a continuous deformation of material with respect to time under constant load that is called as a creep. Now, seventh definition is impact strength. What do you mean by impact strength? The ability of material to resist failure before the failure, to ability of material to resist deformation before the structure of failure, that is called as impact strength. मतलब एक बॉडी है वो क्या हो रही है, फ्रैक्चर नहीं हो रही है, तब तक फ्रैक्चर नहीं हो रही जब तक वो क्या कर रही है, लोड सस्टेन कर सकती है। मतलब उसका एक वैल्यू का कंसीडर करो, एक मटेरियल है, अगर उसके ऊपर मैंने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया ना, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ 10 न्यूटन वहां पे क्या होगा, वो पार्ट क्या होने ब्रेक होने वाला है। बट अगर मैंने 9 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया वहां पे कुछ होने वाला है क्या, नहीं, बिकॉज उसके कैपेसिटी कितना था सस्टेन करने की, 10 न्यूटन था। तो बिलो 10 न्यूटन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वहां पे उस बॉडी को कुछ नहीं होने वाला है। बट आफ्टर मोर देन 10 न्यूटन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द बॉडी विच इज ब्रेक। ठीक है, मीन्स क्या बोले, एक ऐसा लोड रहेगा वो क्या कर सकता है, उसका एक कैपेसिटी रहेगा जो फोर्स को हैंडल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर हार्डनेस। ठीक है, there is a some difference between hardness and stiffness. Now what do you mean by hardness? Hardness मतलब क्या रहता है एक्चुअल में, सिंपल वर्ड, the ability of material to cut another material। भाई एक ऐसा मटेरियल तो दूसरे मटेरियल को क्या करता है, कट करता है, दैट इज कॉल्ड एज हार्डनेस। एग्जांपल ग्राइंडिंग मशीन, तो ग्राइंडिंग मशीन को व्हील जो रहता है दैट इज कॉल्ड एज हार्ड। हम वहां पे स्टिफ नहीं बोलते, स्टिफ इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हार्डनेस इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हार्डनेस मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कट अनदर मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एज हार्डनेस। एग्जांपल ग्राइंडिंग मशीन, व्हील, ग्राइंडिंग मशीन व्हील। नाउ नेक्स्ट विच इज स्टीफनेस। स्टीफनेस मतलब क्या रहता है, कंसीडर करो एक मटेरियल है, उसके ऊपर मैं कितना भी हैमर से मारू वहां पे कुछ नहीं हो रहा है उस मटेरियल को, तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं स्टीफ, मतलब दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज स्टीफ। उसको उस मटेरियल को हार्ड नहीं बोलते। हार्ड का मतलब क्या रहता है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कट अनदर मटेरियल, और स्टीफ का मतलब क्या रहता है, जो हम कितना भी फोर्स अप्लाई करें उस पार्ट के ऊपर, उस पार्ट को कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब द पार्ट हैज अ कैपेसिटी टू सस्टेन दैट अमाउंट ऑफ लोड, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिफनेस। वो वहां पे डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है, कितना भी फोर्स अप्लाई करो, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टिफनेस। एंड नाउ लास्ट इज योर ब्रिटलनेस। नाम में आपको पता चल रहा है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन डायरेक्टली फ्रैक्चर बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ brittleness. Example chalk. ठीक है, this is the live example. Directly we apply small force, then the chalk also breaks. ठीक है, this is called as brittleness. Example, then another example will be glass, but some not a directly problem. There are different types of also glass. Okay? So first example is chalk, second example is glass. There are some extra example etc. Next topic is types of load. Now first type of load which is टेंसाइल लोड। नाउ टेंसाइल लोड नाम में आपको डायरेक्ट इंडिकेट किया, टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड मतलब वी हैव टू गिव टेंशन ऑन द पार्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अप्लाइंग फुल फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, नाउ डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज राइट हैंड साइड, दिस डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड साइड, बोथ डायरेक्शन शुड बी इन ऑपोजिट साइड, बट इट शुड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड। मींस हियर वी आर अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, देन here also we have to apply force is equal to 10 newton. ठीक है, both force should be same, 10 newton 10 newton. Here if we are applying force 30 newton, then here also we have to apply 30 newton. ठीक है, as we give tensile load means body will be elongated. ठीक है, next compressive load, because of compressive load body which is get compressed, again condition both are same, direction should be opposite, this goes to left hand side, this goes to right hand side, but magnitude should be same. Here we are applying 10 newton, here also we have to apply 10 newton. Okay? This is called as a compressive load. Third, which is shear load. Shear load, it means when two parts of a body, when two surfaces of a body are in contact with each other, and if there is a friction occurs in between them,
then at that point of contact there will be shear force will be developed. Now as you see from the diagram, this is plate number 1, this is plate number 2. There is some hole in plate number 1 and plate number 2. From that hole we pass rivet. This is called as rivet. R-I-V-E-T. This is called as a rivet. Now रिवेट, आपने रिवेट से क्या है उसका परमानेंटली जॉइन किया, आप वहां पे डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। जब यहाँ पे एक ब्रेक होगा उसके बाद ही वो क्या होने वाला है, परमानेंटली रिमूव होने वाला है। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हैं P, देन द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स, यहाँ पे क्या होने वाला है, अगर ज्यादा हमने फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ पे रिवेट ब्रेक होने वाले, तो ब्रेकिंग ऑफ रिवेट एज शोन इन दिस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रेक होता है ना, तो यहाँ पे ऑन दैट पार्ट ब्रेक विल बी ऑकर्स। So the part which is comes in the contact with the frictions means, अगर यहाँ पे अगर ऐसा रहेगा तो दोनों फोर्स यहाँ पे ऐसा, एक लेफ्ट हैंड साइड जाएगा एक राइट हैंड साइड जाएगा, तो पहला दोनों प्लेट कांटेक्ट में ऐसा रहेगा। जैसे हमने रिमूव किया वहां से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो इतने से पार्ट में क्या होगा, शियर फोर्स डेवलप होने वाला। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज स्ट्रेस। These are the types of all load. Now the next concept which is stress. Now इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सिग्मा, आपने नंबर्स में 6 लिखा रहेगा, तो यहाँ पे भी सेम करना है, सिर्फ वहां पे 6 हॉरिजॉन्टल बेस में लिखना है। दैट 6 इज कॉल्ड एज SIGMA. दिस इज द टेक्निकल वर्ड, SIGMA सिग्मा। नाउ इट्स फॉर्मूला व्हिच इज स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल स्ट्रेनिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया. That cross section area, it means we are applying, then let us consider this is the whole board and we are applying force on the part of some part of that board. ठीक है, if we are applying some part of that board, मैंने क्या किया है, पूरा बोर्ड है उसमें से सिर्फ यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो एरिया कितना होगा, इतना ही एरिया कांटेक्ट में आने वाला है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतने सेक्शन के ऊपर, तो उसका ही सेक्शन का क्या लेना है, यहाँ पे एरिया लेना है, होल बोर्ड का एरिया लेना नहीं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस। कभी भी फॉर्मूला से आपको डायरेक्टली यूनिट निकालना है, बाय हार्ट कभी नहीं करना है। नाउ फॉर यूनिट ऑफ लोड विच इज न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया यूनिट विच इज मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर mm स्क्वायर, और न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आपका यहाँ पे फोर्स ऑलवेज न्यूटन में रहेगा ऐसा भी नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल 6 SI यूनिट्स है स्ट्रेस के। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 SI यूनिट है, इसमें से सभी बाहर करने का नहीं है, ऐसा नहीं है। द मोस्ट रिकमेंडेड यूनिट ऑफ स्ट्रेस विच इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अभी कभी भी आपको दिया रहेगा तो ऑलवेज आपको स्ट्रेस किसमें कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज योर रिकमेंडेड यूनिट।